Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be continuing with question number 5 of exercise 3C of third chapter fractions. Question 5. Simplify and reduce to a simple fraction. यहाँ कुछ questions दिए गए हैं जिन्हें simplify करके simple fraction में लाना है. First bit 3/3 whole 3/4. ये mixed fraction है, इसे एक normal fraction में लाना है तो हम क्या लिखेंगे 3 divided 3 whole 3/4. That is equal to 3 into 3 4 12 प्लस 3 15/4. लेकिन इसे रिवर्स करना है क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया है तो हम क्या लिखेंगे 4/15. 3 5 15. दैट इज इक्वल टू 4/5. नाउ सेकंड बिट 3/5 डिवाइडेड 7 विच इज इक्वल टू 3/5 इंटू 1/7. यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मीन्स 1 है. दैट इज इक्वल टू 3/35. 3 divided 5/7 which is equal to 3 into 7/5. 3 7s are 21 by 5. Fourth bit 2 whole 1/5 divided 1 whole 1/10. 2 whole 1/5 divided 1 whole 1/10. अब इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ओपन कर लेंगे. 2 5s are 10 plus 1 11/5 divided 1 10s are 10 plus 1 11/10. that is equal to 11/5 into 10/11. डिवीजन को अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा. 5 2s are 10 11 1s are 11. that is equal to 2. इसका आंसर 2 होगा. Now bit 5 2/5 of 6/11 into 1 whole 1/4. इसे भी लिख लेते हैं 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 6/11 into 1 4s are 4 plus 1 5/4. 5 1s are 5. 2 2s are 4. 2 3s are 6. That is equal to 3/11. Now 2 whole 1/4 divided 1/7 into 1/3. इसे ओपन करेंगे तो 2 4s are 8 plus 1 9/4 divided 1/7 into 1/3 which is equal to 9/4 into 1/7 है इसे रिवर्स कर देंगे तो 7 हो जाएगा into 1/3. 3 3s are 9. that is equal to 3 7s are 21 by 4. Now 1/3 into 4 whole 2/3 divided 3 whole 1/2 into 1/2. 1/3 into 4 3s are 12 plus 2 14/3 divided 3 2s are 6 plus 1 7/2 into 1/2 which is equal to 1/3 into 14/3 into ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये रिवर्स हो जाएगा 2/7 into 1/2. 2 1s are 2 7 2s are 14. 3 ये तो नहीं कटेगा ये 3 ही रहेगा. that is 2 by 3 3s are 9. our answer is 2/9. now bit 8 2/3 into 1 whole 1/4 divided 3/7 of 2 whole 5/8 which is equal to 2/3 into 1 4s are 4 plus 1 5/4 divided 3/7 into 2 8s are 16 plus 5 21/8. इसे रिड्यूस कर लेते हैं. 7 3s are 21. हमने इसे ही पहले क्यों रिड्यूस किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉडमस रूल ऑफ वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा which is equal to 2/3 into 5/4 divided ये कितना हो गया 3 3s are 9 by 8. that is equal to 2/3 into 5/4 into 8/9. 4 2s are 8. that is equal to 2 5s are 10 2s are 20 by 3 9s are 27. Now ninth bit 0 divided 8/11. इसे हम लिख सकते हैं 0 into 11/8 क्योंकि डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में आता है तो फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है. Any number multiplied with 0 will be 0. Now 10th bit 4/5 divided 7/15 of 8/9. बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग ये पार्ट पहले सॉल्व होगा. 4/5 divided 7/15 into 8/9 ऑफ का मतलब into होता है. यहाँ कोई रिडक्शन नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं 4/5 divided 7 8s are 56 by 15 9s are 135. that is equal to 4/5. डिवीजन को मल्टीप्लाई का साइन देंगे ये रिवर्स हो जाएगा 135 by 56. 5 2s are 10 5 7s are 35. 4 1s are 4 4 4s are 16.
that is equal to 27 by 14. Now 11th bit, 4 by 5 divided 7 by 15 into 8 by 9 which is equal to 4 by 5. डिविजन को मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं 15 by 7 into 8 by 9. 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और कोई रिडक्शन नहीं होगा तो इसे हम क्या लिखेंगे 4 8 जा 32 by 7 3 जा 21. Now 12th bit, 4 by 5 of 7 by 15 divided 8 by 9 that is equal to 4 by 5 into 7 by 15 divided 8 by 9. यहाँ कोई रिडक्शन नहीं होगा इसे हम लिख सकते हैं 7 4 जा 28 by 15 5 जा 75 divided 8 by 9 that is equal to 28 by 75 into 9 by 8. 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और कोई रिडक्शन नहीं होगा 7 3 जा 21 by 25 2 जा 50. Our answer is 21 by 50. Now 13th bit, 1 by 2 of 3 by 4 means into 3 by 4 into 1 by 2 divided 2 by 3. यहाँ कोई रिडक्शन नहीं होगा तो हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1 into 3 into 1 3 by 2 4 जा 8. This is 1 into 3 3 by 2 4 जा 8 into 1 by 2 into इस 2 by 3 को रिवर्स कर देंगे 3 by 2. यहाँ कोई रिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो 3 3 जा 9 by 2 2 जा 4 8 जा 32. Our answer is 9 by 32. Now question number 6. A bought 3 whole 3 by 4 kg of wheat and 2 whole 1 by 2 kg of rice. A ने 3 whole 3 by 4 kg wheat परचेस किया है और 2 whole 1 by 2 kg rice भी. Find the total weight of wheat and rice bought by A. A ने total wheat और rice कितना परचेस किया है हमें वो weight निकालना है तो हम लिख सकते हैं quantity of wheat bought by A. A ने कितना क्वांटिटी wheat बाई किया है यहाँ क्वेश्चन में दिया है 3 whole 3 by 4 kg तो इसे हम लिख सकते हैं 3 4 जा 12 plus 3 15 by 4 kg. Similarly, quantity of क्या परचेस किया है और राइस bought by A equals to 2 whole 1 by 2 kg which is equal to 2 2 जा 4 1 5 by 2 kg. अब हमारे पास राइस और व्हीट का वेट नॉर्मल फ्रैक्शन में आ गया है अब इसे सॉल्व करना इजी होगा. Therefore टोटल वेट पूछा गया है. टोटल वेट of wheat and rice bought by A. A ने टोटल कितना बाई किया है 15 by 4 plus 5 by 2 which is equal to 4 और 2 कैल्शियम 4 होता है 4 1 जा 4 15 1 जा 15 plus 2 2 जा 4 2 5 जा 10 which is equal to 15 plus 10 25 by 4 kg that is equal to 6 whole 1 by 4 kg. टोटल कितना बाई करा है 6 whole 1 by 4 kg का वेट उसने बाई करा है. Now which is greater 3 by 5 और 7 by 10 and by how much? इन दोनों में से कौन ग्रेटर है और कितना ज्यादा है इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लेंगे 3 by 5 and 7 by 10 यही दोनों दिया गया है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 into 10 और ये 7 into 5 this is 30 this is 35 कौन बड़ा है 35 बड़ा है therefore 3 by 5 is less than 7 by 10. ये एक आंसर हमें मिल गया कि कौन बड़ा है 7 by 10 बड़ा है. अब हमें इनका डिफरेंस बताना है. So difference between 7 by 10 and 3 by 5 equals to 7 by 10 minus 3 by 5 that is equal to 10 और 5 कैल्शियम 10 होता है 10 1 जा 10 7 1 जा 7 minus 5 2 जा 10 2 3 जा 6 that is equal to 1 by 10.
उनके बीच का डिफरेंस 1/10 है, तो हम क्या लिखेंगे? Therefore 7/10 is greater than 3/5 by 1/10. Now question number 8. What number should be added to 8 whole 2/3 to get 12 whole 5/6? क्वेश्चन में बोला गया है 8 whole 2/3 में हम क्या ऐड करें कि हमें 12 whole 5/6 मिले. Let the number to be added be x. जिस नंबर को ऐड करना है उसे हम x मान लेते हैं. Therefore 8 whole 2/3 प्लस x इक्वल्स कितना दिया गया है? 12 whole 5/6. यही बोला गया था. 8 whole 2/3 में कितना ऐड करेंगे कि 12 whole 5/6 मिलेगा. That implies 8 3 24 plus 2 26/3 plus x equals 12 6 72 plus 5 77/6. That implies x equals 77/6 minus 26/3. That implies x equals 6 और 3 का LCM 6 होता है. 6 1 6, 77 1 77, minus 3 2 6, 2 6 12, 2 2 4 1 5, 52. That implies x equals 77 minus 52, 7 minus 2 5, and this is 7 minus 5 2, 25/6. That implies x equals 4 whole 1/6. वो कौन सा नंबर है? वो नंबर 4 whole 1/6 है. Now question number 9. What should be subtracted from 8 whole 3/4 to get 2 whole 2/3? 8 whole 3/4 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 2 whole 2/3 मिले? बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. यहाँ एडिशन था, यहाँ सब्ट्रैक्शन है. सेम वैसे ही लिखेंगे. Let the number to be subtracted be x. मान लेते हैं जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो x है. Therefore 8 whole 3/4 minus x equals 2 whole 2/3. That implies 8 4 is 32 plus 3, 35/4 minus x equals 2 3 is 6 plus 2, 8/3. That implies 35/4. 8/3 को इक्वल टू के दूसरे साइड ले आते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा. माइनस 8/3 विच इज इक्वल टू माइनस एक्स को दूसरे साइड ले जाते हैं तो प्लस एक्स हो जाएगा. दैट इम्प्लाइज 4 और 3 का LCM 12. 4 3 is 12, 3 5 is 15, 3 3 is 9 1 10, minus 3 4 is 12, 8 4 is 32, which is equal to x. So 105 minus 32 is 73/12. That implies x equals 6 whole 1/12. वो कौन सा नंबर है जिसे सब्ट्रैक्ट करना है? वो नंबर 6 whole 1/12 है. Now question number 10. A rectangular field is 16 whole 1/2 meter long and 12 whole 2/5 meter wide. Find the perimeter of the field. एक rectangular field है जो 16 whole 1/2 meter long है यानी कि उसका लेंथ दिया गया है and 12 whole 2/5 meter wide है यानी कि उसका ब्रेड्थ दिया गया है. तो हमें उसका perimeter निकालना है. तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं. Length of rectangular field. रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ कितनी दी गई है? 16 होल 1/2 मीटर. दैट इज इक्वल टू 16 2 is 32 प्लस 1 33/2 मीटर. ये हमें लेंथ मिल गई. नेक्स्ट है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेड्थ कितनी दी गई है? 12 होल 2/5 मीटर. दैट इज इक्वल टू 12 5 is 60 प्लस 2 62/5 मीटर. पूछा क्या गया है? पेरीमीटर. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. किसका पेरीमीटर निकालना है? रेक्टेंगुलर फील्ड का. फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 × L + B. इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 2 × L कितना मिला है? 33/2 प्लस B कितना मिला है? 62/5. दैट इज इक्वल टू 2 × 2 और 5 का LCM 10 होता है. 2 5 is 10, 5 3 is 15, 5 6 is 15, 116 165 प्लस 5 2 is 10, 2 2 is 4, 2 6 is 12, 124 which is equals to 2 × 165 plus 124.
289 by 10, 2 5s are 10, that is equal to 289 by 5 मीटर। इसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखे 57 होल 4 बाई 5 मीटर, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।